7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV C-59 Probattery mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और The Gore S-139 stage thrusting along with the solid strap-on motors. Plus 40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. We are 58 seconds into the launch. Burning together. The first stage, Shot to main under core tracking. motor and Ground the lead strap-on strap-ons together generate about 9,000 kilonewton Shot 1 thrust. main under tracking. इस क्रम में First stage performance normal. अब हम आगे देखेंगे ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्करण, तत्पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को पृथक किया जाएगा और अंत में प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे भी यान से पृथक किया जाएगा। The Shard telemetry and tracking station presently acquiring the trajectory data. There is a confirmation about the strap-on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers, implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. Plus 3 minutes. जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed by the Range Operations Director. The stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene-based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewtons vacuum thrust. यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आए हुए गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित Third stage performance normal. प्रमोशन मिशन के साक्षी बन रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा, तत्पश्चात कोस्ट फेज प्रारंभ होगा। PS3, the operation time is 120 seconds.
As we informed you earlier, significant increase in relative velocity takes place during the PS3 thrust regime. यह उड़ान दक्षिण पूर्वी दिशा की है। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक कर रहे हैं और हम तक सभी आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रोब ऑफ वी। Third stage separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने पुष्टि की कि तृतीय चरण को भी यान से पृथक कर दिया गया है। अब इसके 10 सेकंड के पश्चात Fourth stage engine started. जी हाँ, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। The fourth stage has commenced its operation. It's the uppermost stage. Twin pressure-fed Fourth stage engines performance operating on normal. earth-storable propellant combination of monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen. दर्शकों, आपने गणतंत्र दिवस की परेड तो देखी ही होगी और उसमें फाइटर जेट एरोप्लेन के विभिन्न गठन उड़ाने, जिसे हम फॉर्मेशन Plus 9 minutes. फ्लाइंग कहते हैं, कितना आश्चर्य और रोमहर्षित करने वाला होता है। कितनी सटीकता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही दृश्य आज हम अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में देखने जा रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया प्रोबा 3 एक अनूठा मिशन है जो यह फॉर्मेशन की तकनीकी तथा तकनीक दोनों का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस मिशन में 2 उपग्रह हैं जो प्रमोचन यान से पृथक होने के पश्चात आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घ Fourth वृत्ताकार stage कक्षा में performance normal. पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह पहली बार है जब एक ऑकल्टर और एक कोरोनाग्राफ उपग्रह फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यह आगे आने वाले बहु उपग्रह मिशनों में गठन उड़ान का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इस फॉर्मेशन में दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 144 मीटर की दूरी होगी Plus 10 और इसे minutes. मिलीमीटर की सटीकता के साथ 6 घंटे तक के लिए उस फॉर्मेशन में बनाए रखा जा सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह फॉर्मेशन ये उपग्रह आपस में सामंजस्य बनाते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से करने वाले हैं, यानी बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट की मदद लिए। इस मिशन में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के तहत आपस में टकराव से बचाने के लिए कार्यवाही निर्मित की गई है। इससे अंतरिक्ष मलबा का खतरा कम होता है। Fourth stage performance normal. प्रोबा 3 मिशन में कुल 3 उद्देश्य हैं। कोरोनाग्राफ उपग्रह से किसी भी समय सूर्य की आंतरिक वातावरण का साफ चित्र प्रदान करना, जो कि अब तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अध्ययन करने के लिए मिल पाता था। इस कार्य के लिए ऑकल्टर उपग्रह में 101.4 मीटर का ऑकल्टर डिस्क लगा हुआ है, जो कि एक अपारदर्शी डिस्क है जो एक गठन में सूर्य को ढक लेगा और तब कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का सटीक चित्रण ले सकेगा। दूसरा उद्देश्य है इसमें डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर की मदद से सूर्य से उत्सर्जित कुल विकिरण का मापन कर सकना। यह मापन कई मायने में सौर अध्ययन के लिए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा। तीसरा उद्देश्य है 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पृथ्वी की विकिरण पट्टी से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लक्स का मापन करना। यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इस तरह प्रोबा 3 अपने 2 साल के अभिकल्पित जीवन काल में निरंतर चित्र अधिग्रहण, कक्षा में मेल, सटीकता, Telemetry data reception from निकटता Yatraga station संचालन, is confirmed. गठन संचालन, कोरोनाग्राफ अवलोकन का प्रदर्शन करने जा रहा है। Plus 12 minutes. Long burn time of 516 seconds or 8.5 minutes for the PS4 stage for the PSLV C-59 Proba 3 mission. We are 732 seconds into the flight. The Yatraga station has started to acquire data and currently providing us the trajectory information. Compared to relying on natural solar eclipses, Proba 3 will provide 100 times increase in the observation time for scientific studies. इसमें लगे 3 उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझा सकेंगे कि सौर कोरोना सूर्य की तुलना में अधिक गर्म क्यों होता है। इस अध्ययन के लिए इसमें ऑकल्टर नामक साथी उपग्रह द्वारा कोरोनाग्राफ उपग्रह पर सूर्य की कृत्रिम ग्रहण का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑकल्टर के डिस्क की छाया कोरोनाग्राफर पर पड़ेगी और उस समय उसमें लगे कैमरे की मदद से वह सूर्य के वातावरण के अध्ययन कर सकेगा। अब प्रोबा 3 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में प्रोबा 3 युगल उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। We are very close to the most awaited event, the satellite separation. The injection parameters are closely achieved. Plus 18 minutes. कुछ ही क्षणों में प्रोबा 3
अंतरिक्ष यान को चतुर्थ चरण से पृथक कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वह 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। Proba 3 satellite separated. यहाँ हर्ष कापल यहाँ पर आ चुका है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की कि प्रोबा 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। Accomplished. Handing over to mission director. This is Mission Director. PSLV C-59 has injected Proba 3 satellite into the desired orbit. PSLV C-59 Proba 3 mission is fully accomplished. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोबा 3 की। प्रोबा 3 क्या है, इसका काम क्या है और इस प्रोबा 3 को कल इसरो ने लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा, भारत से। जो प्रोबा 3 है ये एक सैटेलाइट है जो कि यूरोपीय संघ का है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, उनका ये सैटेलाइट था। लेकिन इस सैटेलाइट को लॉन्च किया भारत के इसरो ने, भारत से। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जमाना हुआ करता था जब भारत, मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो जो नॉर्मल सैटेलाइट होती थी टीवी वगैरह के प्रसारण के लिए, इन टीवी प्रसारण के लिए भी हमारे को दूसरे देशों, यूरोपीय कंट्रीज़ या अमेरिका से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाना पड़ता था। हम अपनी सैटेलाइट बनाते थे, वहाँ जाके उनको देते थे और वो उसको फिर लॉन्च करते थे असेंबल करके। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और जो भारत का इसरो है वो हर दिन नए नए बड़ी बड़ी कामयाबी, नई नई बुलंदियों पे पहुंचता जा रहा है। और इससे इसरो की इन बुलंदियों को देखते हुए मेरे को अपने इसरो पे भी बहुत खुशी है और हमारे इसरो के अचीवमेंट्स पे भी बहुत खुशी है कि कितनी जल्दी कितनी बड़ी तरक्की कर ली। एक पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है वो स्पार्को क्या बोलते हैं, जो भी स्पेलिंग के हिसाब से वो प्रोनाउंस कर लेते हैं। लेकिन उसका आज तक मेरे को कोई अचीवमेंट नहीं दिखता कि उन्होंने कभी कोई रॉकेट छोड़ा हो। बल्कि मैंने एक वीडियो देखा था पाकिस्तानी का, वो लोग कह रहे थे कि जब वो स्पार्को के ऑफिस में गए तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि स्पेस सेंटर में अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। तो इसी से पता चलता है कि एक कंट्री उसकी स्पेस को लेके क्या सोचे और एक हमारा देश कि हम अपने देश को स्पेस में भी किन बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। और उन बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रहा है इसरो। और इसरो के इस कदम के लिए मैं इसरो का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ कि वो हमारे को इतना हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ एनकरेज करता है या हैप्पी न्यूज़ देता है। उसी कड़ी में कल की ये न्यूज़ थी जिसमें प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 यूरोप का ही सैटेलाइट था, उन्होंने बनाया था, वो इंडिया में लेकर आए। उसको फिर हमारे जो रॉकेट लॉन्चर है उसमें रॉकेट में उसको लगाया गया, फिट किया गया और उसके बाद इसको स्पेस में लॉन्च किया गया। इस प्रोबा 3 का जो काम है, जो मिशन है, वो मिशन ये है कि ये स्पेस में जाएगा। जैसे आपको याद होगा भी कुछ महीने पहले इसरो ने एक अपना सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था आदित्य L1। उसका नाम इसलिए दिया गया था कि वो सन की L1 कक्षा में रुककर वहाँ से सूर्य की ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी वो रिसर्च करेगा वो L1 के ऑर्बिट में ही करेगा। ठीक इसी तरीके से जो ये प्रोबा 3 है ये जाएगा सन के पास और वहाँ से ये सन के कोरोना को स्टडी करेगा। सन का कोरोना मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सामने कैमरा है और कैमरे के बीच में मैं सैटेलाइट हूँ, लेकिन मेरे को क्योंकि सामने से ज़्यादा रोशनी आ रही है तो जो चारों तरफ का, सन के चारों तरफ का जो कोरोना होता है, जो बाहरी आउटर लाइन होती है, उसका स्टडी मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। ये स्टडी केवल तभी हो पाती है जब पृथ्वी पर जो सोलर एक्लिप्स लगते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ते हैं और उस समय जब सूर्य पूरा ढक जाता है तो उसके बाहर जो रिंग दिखती है, तब केवल ये उतने मिनट या सेकंड के लिए ये स्टडी हो पाती थी। तो अब इस स्टडी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी 24 घंटे आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स बना के, मतलब वहाँ पर जैसे मान लीजिए, फिर से एग्जांपल दूंगा कि आप, ये कैमरा सन है और मैं सैटेलाइट, तो बीच में एक वो अपना
डिस्क है वो लगा देगा और उसके कारण जो मेन सन है वो दिखेगा नहीं और उसके बाहर की जो आउटर साइड्स हैं केवल वही दिखेंगी। तो इसका मकसद ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सन जितना गर्म है उससे भी ज़्यादा गर्म जो उसकी आउटर स्पेस है जो कोरोना है वो उससे भी कहीं ज़्यादा गर्म है। तो वो क्यों गर्म है और उसकी वजह क्या है, और उसके अलावा वो ये भी देखेगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज किस तरीके से निकल रही हैं या अल्ट्रा रेड रेज किस तरीके से निकल रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका क्या इम्पैक्ट पृथ्वी पर पड़ रहा है, हम इंसानों पर पड़ रहा है, इन सब के ऊपर भी वो रिसर्च करेगा। इस मिशन की खासियत ये भी थी कि जो ये प्रोबा 3 है ये 2 सैटेलाइट्स हैं, दो, जैसे कि आपने 26 जनवरी वगैरह में देखा होगा कि 2 प्लेन आते हैं और दोनों एक ही सिमेट्री में जाके उड़ते हैं एक साथ। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। और ये जो दोनों सैटेलाइट हैं ये दोनों सैटेलाइट एक पैरेलल डिस्टेंस पे साथ साथ उड़ती रहेंगी और स्टडी करती रहेंगी। तो अपने आप में एक ये नई बात है और पहली बार इस तरीके का कोई मिशन दुनिया में लॉन्च किया गया है। देखते हैं ये हमारे को क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स देगा रिसर्च करके। लेकिन जो कल का ये इवेंट था इसको मैंने 2 हिस्सों में आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। एक हिस्सा आप देख चुके हैं कि उसकी लॉन्चिंग, और दूसरा हिस्सा वो है कि जो लॉन्च होने के बाद, होने से पहले और होने के बाद तक जो उसके एक एक करके हर स्टेप्स में पार्ट्स अलग होते जाते हैं वो सारा इसमें ने रिकॉर्ड किया है और उसको प्रेजेंट किया है इस वीडियो में। तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी देखें। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद और नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। PS4 activation in progress. The Indian Space Research Organisation, ISRO, is poised to make history again as it gears up to launch the European Space Agency's project for onboard autonomy Proba 3 mission in December 2024. This PSLV C-59 mission is the dedicated commercial mission of New Space India Limited, NSIL, the commercial arm of the Indian Space Research Organisation, ISRO. The Proba 3 mission consists of 2 satellites, the Occulta and the Chronograph. With a combined weight of approximately 560 kilograms, these satellites are set to be launched in a stacked configuration using ISRO's workhorse launch vehicle, the PSLV. The PSLV C-59 mission will be undertaken from first launch pad located at Satish Dhawan Space Center, SDSC, Shar, Sriharikota. This mission marks the 61st flight of the Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, and the 26th mission using the PSLV XL configuration. The Proba 3 mission, dedicated to the exploration of the Sun's corona, seeks to achieve its objectives through the deployment of 2 satellites in a highly elliptical orbit. Proba 3's design will enable continuous views of the Sun's corona, which Earth-based observers only witness briefly during solar eclipses. This precise mission relies on millimeter-level accuracy to cast a shadow between the 2 satellites, effectively blocking direct sunlight and providing clear observation of the Sun's outer atmosphere. This mission demands a high-altitude orbit, enabling the satellites to fly in formation for about 6 hours at peak altitude, where the influence of Earth's gravity diminishes, reducing propellant usage and facilitating optimal positioning control. Additionally, the spacecrafts carry instruments such as spectrometer and radiometer to study radiation near Earth and measure total solar irradiance, which is vital for climate science. This momentous event not only showcases the spirit of international collaboration in space exploration, but also highlights the relentless pursuit of knowledge and innovation.